morning, HHF. I am Dr. Amar Santosh Marathe from Jalgaon HHF, and today, this Thursday, I am sharing my cases with you. Basically, sharing is the only motive of our HHF, and to spread a knowledge of homeopathy unto the last person is the thought and the mission of our beloved master डॉक्टर मिलिंद राव सर. अगर किसी ने ये केस सुनी नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म पे अभी सुनते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड केस टू लर्न. सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस केस. जस्ट हियर द केस and the feel of the patient. ते त्यांना खोबरेल तेल लावलं की जरा गारवा वाटतो. बर, कधीपासून आहे तुम्हाला हे? कधीपासूनच आहे सर. मी कधीच घेऊन राहिले ही खात्यावरची औषधं. पण मला तुम्ही आता मी मॅडम माझ्या चौथ्या डॉक्टर आहे होमिओपॅथीच्या. कल्याणला, डोंबिवलीला, तुम्ही डोंबिवलीला यादव डॉक्टर आहे त्यांचं, आणि आणखीन एक आहे पूर्वी, त्यांचं नाव काय मला आता आठवत नाहीये. आणि कल्याणला पण मी घेतली ती औषधं. होली क्रॉस हॉस्पिटलमध्ये एक डॉक्टर होते स्किनचे, त्यांनी पण मला त्या 8 दिवसाचं रेकॉर्ड ठेवायला सांगितलं होतं. काय खाता, अमुक खाऊ नका. मी ते सगळं केलंय सर, पण ते माझी खास काही जात नाहीये. ओके. आणि आता बोला. हा बोला, काय म्हणताय? नाही बोला तुम्ही. नाही, आणि आता कोणत्या कंडिशनवर येऊन गेले तुम्ही? कंडिशन मध्ये म्हणजे आता थांबलेली आहे खास, आणि रात्री 1च्या पुढे झोप पण लागली मला, पण झोप कमी झाली तर त्रास होऊन राहिलाय खूप. सकाळी जाग येऊन गेली 4 वाजता. हार्डली 2-1 तास झोप झालेली आहे. See the way the patient express herself. This is a 69 years old lady, and I will tell you the history of this, just a summary of this case. So this is a 69 years old lady, and last 30 years she is suffering from itching of the skin, and there is a tremendous cracks in her palms, and in her not only the skin complaint, but she is suffering from arthritis also. And by these pains, or by these grievous condition, she's day to day she is suffered from this case. She is suffered from this pain, taking n number of pills for to suppress the itching, but she is not able to get the relief. So during this case we hear the pain, we feel the pain of the patient, from what condition she is suffering. So up till now we hear that during I ask what you do when there is a itching, or what you do when what you done when there is a tremendous itching. So patient tells I apply a coconut oil for the itching. It gives me a little relief, but I has to take the Ocacet, a medicine, anti-allergic medicine, to suppress this itching, and that gives me a little relief. But this itching exhausted me a lot. I'm a sleeplessness at night. I'm not able to do my work, or when I wake in the early in the morning I exhausted all my energy due to this itching, or due to this pain of arthritis. So again we hear, again just listen the pain of this patient, so we can understand the what, the how, the why of the patient, because it is a very important to get a simillimum for this patient, because up till now the patient came to us
from a many doctors. She take a treatment from allopathy, she take a treatment from Ayurveda, and she take also a treatment from homeopathy, and we are the fourth, as she told, now you are a fourth homeopathic doctor. So we can understand that by going through this process now, she is not able to get the relief. So अब उसे अगर सिमिलिमम नहीं मिलता है तो ये केस और क्रॉनिक हो सकती है, या ये तो अभी तो बहुत ही क्रॉनिक हो गया है ना। 30 इयर्स का जो पेन है ना, वो पेन हमें समझना है ये केस में। अगर ये 30 इयर्स का जो पेन है, अगर वो पेन हम समझ जाते हैं ना, तो ये रेमेडी हम इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ये जान है वो रेमेडी की। सो अगेन हम थोड़ा सा उसे समझते हैं केस को, थोड़ा और सुनते हैं केस। बरं, खाजेला घेऊन तुम्हाला काय वाटतं आता इतके 4 डॉक्टर झाले तर? काय माझी मानसिकताच झाली की ते जात नाहीये. माझेच मी हैराण होऊन गेले खूप, म्हणजे वैतागले पण आहे की आता कसं हे खाजेची एक डॉक्टरचे उपचार होत नाही. आणि मी मग ते सोडल्यानंतर मी ओकॅसेट म्हणून गोळी आहे खाजेवरची, ॲलर्जीची, ते घेत होते. आता तर ती ओकॅसेट घेऊन सुद्धा थांबत नाही. See the despair of this patient कि उसने क्या कहा ना कि ऐसी कैसी ये बीमारी है, क्या ऐसी कैसी बीमारी मुझे लग गई है कि इतने सारे डॉक्टर्स के पास में जाके भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या इतने सारे डॉक्टर्स की मेडिसिन में ले रही हूँ फिर भी मुझे थोड़ा सा भी आराम क्यों नहीं मिल रहा है। और सर मैं काफी परेशान हो गई हूँ, थक चुकी हूँ ये बीमारी को लेके, और हैरान हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। भयंकर चिडचिड होते का? भयंकर चिडचिड होते? हो, खूप चिडचिड होते सर. मला कोणाचा फोन आला तरी मला घ्यावंसं वाटत नाही, त्यामध्ये इतकी चिडचिड होते. See the pain of the patient. आणि नंतर मग थकायला होऊन जातं एवढं सगळं त्या खाद्याचं पुराण झालं की. आता मी प्रचंड थकले. ओके, काय झालं तर बरं वाटतं तुम्हाला? काय झालं पाहिजे असं वाटतं? काय झालं तर खात गेली की बरं वाटेल मला, गुडघेदुखी गेली की बरं वाटेल. गुडघेदुखी म्हणजे माझं संधिवात आहे सर. ते रिप्लेसमेंट वगैरे गुडघे नाही आहेत माझे, संधिवातामुळे जाम होतात ते माझे गुडघे. मग ते शोल्डर सुद्धा लॉक होतात. सगळे हाताची बोटं वाकत नाहीत. हाताची बोटं पण. See how patient express such a despair कि इतनी खुजली होती है सर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जब मैंने उसे पूछा ना कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, तो पेशेंट ने किस तरह से जवाब दिया ना, क्या होना चाहिए मतलब क्या सर, ये ठीक होना चाहिए, मुझे चलते आना चाहिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम संधिवात। तो उसने बोला ना कि मुझे संधिवात है, जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं है सर, संधिवात है। और काफी दिनों से, यानी करीबन 30 इयर्स शी इज सफरिंग फ्रॉम डिसीज। सो ये मुझे चलते आना चाहिए सर, इस संधिवात की वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ, आई एम इमोबलाइज, एंड ये पेन इतने होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं थक गई हूँ सर। और कभी कभी तो ये जॉइंट्स हैं, जो हाथों के जो जॉइंट्स हैं, उसमें भी पेन आते हैं, और उससे भी काम नहीं होता है। और कभी कभी तो मेरे शोल्डर भी लॉक हो जाते हैं। सो सच अ पेन शी इज कैरिंग। हो, खूप त्रास आहे सर. मी सगळ्यांची औषधं घेऊन झाली. आता तुम्ही द्या चांगलं औषध. खूप त्रास होतोय मला.
अगदी म्हणजे इतकं कधी कधी ते एवढं ओव्हर होतं ना की मला असं वाटतं संपवून टाकावं जीवन. सी द पेन ऑफ द पेशेंट ना. क्या बोला ना पेशेंट ने कि कभी कभी तो इतना ओवर हो जाता है ना सर कि अभी लगता है कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है. जस्ट गो एंड सुसाइड. इतना पेन है सर, अब सह नहीं सकते हैं. हरल्या तुम्ही आता ना? हरून मग काय करणार? सी ना, जैसे ही मैंने उसे बोला ना कि हरल्या तुम्ही आता, यानी हार गए हो आप, तो वो रोने लगी. और ये हमें सुनाई देता है. उसने जैसे मराठी मध्ये ना एक हुंदका दिला तिने. तर सी, दिस इज द इमोशंस. अगर हम ये इमोशंस अगर पकड़ते हैं ना पेशेंट को, ये पेन अगर फील करते हैं ना, तो ही हम एग्जैक्ट सिमिलिमम के पास जा सकते हैं. ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि व्हाट इज दिस. अगर यहाँ पे अगर पेशेंट रोया है या यहाँ पे अगर पेशेंट ने कुछ किया है तो वो क्या है और उसका रूब्रिक क्या है, उसे हम क्या किस तरह से पकड़ सकते हैं ना, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा. क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, हमें ध्यान से सुननी है. और अगर हम यहाँ पे काफी अटेंटिव नहीं रहते हैं ना तो ये छूट जाएगी. सो मैं आपको ये रुका रुका के ये केस आपको दिखा रहा हूँ. आता होतच नाही उपचार तर काय, हरणार नाही तर काय. ओके. घरी कसं आहे तुम्हाला? घरी कोणी नाही सर, मी एकटीच आहे. का बाकी? सो अभी हो ही नहीं रहा है ना सर. जर होतच नाहीये उपचार तर हरणारच ना मी. एंड दिस इज अ डिस्करेज ऑफ द पेशेंट. ये डिस्पेयर है, ये डिस्करेज हो गई है पेशेंट. और जैसे पेशेंट ने बोला ना कि अभी जीने की इच्छा नहीं रही है, तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है. और यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने उसे पूछा कि घर पे कौन कौन है आपके साथ. ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसे पेशेंट और इस पेन से अगर पेशेंट गुजर रहा है ना तो कोई ना कोई उसका होना चाहिए, या कोई ना कोई है क्या कोई उसके साथ में ये पेन्स को फील करने के लिए. तो पेशेंट ने क्या जवाब दिया देखो. एकटीच आहे. का बाकीचे? घरी कसं आहे तुम्हाला? घरी कोणी नाही सर, मी एकटीच आहे. का बाकीचे जवळपास कोणीच नाहीये? कोणी नाही. सगळे माझे रिलेटिव्ह, मिस्टर गेले, मुलं गेली, मुलगी होती ती गेली. मी एकटी आता. ओके. मुलगी गेली म्हणजे मला नाही कळालं काय झालंय तर. वारली मुलगी कॅन्सरने. ओके. मिस्टर ते पण वारले? हो, ते वारले 2000 सालीच गेले ते. ओके. एकच मुलगी होती तुम्हाला? एक मुलगा आणि मुलगी होते ना. मुलगा? मुलगा ऍक्सिडेंट, ट्रेन ऍक्सिडेंट मध्ये गेला मुंबईला. ओ माय गॉड. See the pain of the patient. जैसे ही मैंने उसे पूछा ना कि घर पे कौन है आपके साथ में, तो पेशेंट ने बोला कि अकेली हो सर, एकटी है घरी, कोणी नहीं है सोबत, कोई नहीं है मेरे साथ. मिस्टर गए, मेरी एक लड़की थी वो भी चली गई. तो मैंने बोला गए यानी कहा, तो उसने बोला ना कि डेथ हो गई है. मेरी एक लड़की थी, शी सफर्ड फ्रॉम कैंसर एंड शी डाइड.
मिस्टर ऑल्सो डाइड इन 2000। और एक लड़का था, उसका भी ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। सो दिस इज द पैथोलॉजी, सो दिस इज द ग्रेवियस कंडीशन ऑफ दिस पेशेंट। और अब कोई नहीं है सर। और ये किस तरह से उसने बताया ना, वो जो पेन है ना, वो अभी भी हमें फील होता है ना, कि एक स्पॉन्टेनियस, मेरे से भी एक रिएक्शन आई स्पॉन्टेनियसली कि ओ माय गॉड, कि क्या ट्रेजेडी है ना पेशेंट की। और यही पेशेंट की ट्रेजेडी है ना, ये डिसीज लाती है। और मैं आगे चल के इसका साइकोडायनेमिक्स भी आपको बताऊंगा, या आगे चल के मैं आपको ये सभी चीजें, मैं आपको एक एक ये जो जो भी उसने जो बोला है, और ये जो भी कंडीशन उसके साथ में हुई है, तो इस हर एक का हमारे पास एक रूब्रिक है, हर एक का एक फील है, जो मैं आपको आगे चल के ये रेमेडी में आपको देने वाला हूँ। और अगर ये आप रेमेडी बाय हाथ करते हैं अभी, तो आपको इन एंड आउट, जब भी कोई भी पेशेंट इस तरह का हो, या अलग तरीके से अगर कोई भी पेशेंट बात करता है ना, तो आप ये रेमेडी दे सकते हो। थोड़ा और सुनते हैं, फिर मैं एनालाइज और इवैल्यूएशन हम सब आता करेंगे तुम्ही उसके। एकटेच केलं? हो, एकटीच आहे मी. त्या सगळ्या वन बाय वन दुःखातनं मी डोकं वर काढत जगले. आता अगदी हैराण झाले आहे. आता आता फाईट करायची हे नाही राहिली ना. 69 चालू आहे मला. आता हिंमत खचली असं वाटतंय का? आता नाही फाईट, आता फाईट नाही होत आपल्याकडनं असं वाटतंय. फाईट म्हणजे फाईट व्हायला ताकद तर हवी ना सर. ते खाण्याची इतकी दहशत बसली आहे मला, की कधी सुरू होईल आणि कधी त्रास होईल, की मला काही सुचत नाही त्यामध्ये. लिहिणं, वाचणं, टीव्ही पाहणं, काही सुचत नाही मला त्यामध्ये. See the way she is expressing ना, what a fantastically उसने सभी चीजें इतने अच्छे तरीके से बताई है ना, कि और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे मैंने पूछा ना कि आप हार गए हो ना, तो बोले ना कि आई एम रनिंग 69 सर। और ये जो खुजली है, उसकी इतनी दहशत हो गई है ना सर मुझे, कि कब शुरू होगी और क्या होगा, और ये कौन सी कंडीशन में चली जाऊंगी। उसकी वजह से ना तो मैं पा रही हूँ, ना तो मैं टीवी देख रही हूँ, ना तो मैं कभी कुछ एंजॉय कर रही हूँ सर। कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे से। सो दिस इज अ वेरी क्लियरली शी इज एक्सप्लेनिंग। ओके ओके ओके. मॅडमने दिली होती मला, स्मिता मॅडमने औषधं. दिले त्यांनी अशा अर्ध्या अर्ध्या तासाने घ्यायचं, तर थांबून गेलं ते. आणि पुन्हा दुपारी मग ते पण घेतलं मी. त्या मग असं होत होता मला. ओके. स्मिता मॅमने दिलेली औषधं मी घेत. औषध हो, मी औषध देतो तुम्हाला. तुमचं नाव काय सर? डॉक्टर अमर मला थोडं अजून सांगता येईल का तुम्हाला, की तुमचा स्वभाव कसा आहे म्हणून? माझा स्वभाव माझ्या लाईफस्टाईल मुळे असा चिडचिडा राहिलाय. आणि ये यहाँ तक तो रेमेडी भी क्लियर हो गई थी, और मैं प्रिस्क्रिप्शन भी देने वाला था, और मुझे पता था कि यही रेमेडी उसको एक्ट करेगी। मगर ना मुझे और थोड़ा श्योर होना था, जैसे जिसे हम मेरी एक स्टाइल है कि मैं सीटी करता हूँ, तो मुझे और थोड़ा क्लोज जाके ना इसका नेचर पूछना था। तो मैंने इससे सवाल किया कि आपका स्वभाव कैसा है, वो मुझे आप थोड़ा बताओ। आता हताशपणामुळे आता जगायचीच इच्छा. माझा स्वभाव माझ्या लाईफस्टाईल मुळे असा चिडचिडा राहिलाय. आणि आता हताशपणामुळे आता जगायचीच इच्छा नाहीये. कितना क्लियरली उसने बताया। म्हणजे मला सगळं मनाविरुद्ध झालं आयुष्यामध्ये.
माझं वयाच्या 11व्या वर्षीच लग्न झालं. मी शाळा सोडली आणि शेतात गेले होते. मला ते फार वाटायचं की का आपल्याला कसं हे जीवन आलं वाटायला म्हणून. त्यानंतर मग मी तिथे शेतामध्ये जात असतानाच मी अभ्यास केला, ग्रॅज्युएशन केलं पुणा युनिव्हर्सिटीचं. त्यानंतर बीएड केलं आणि मग मुंबईलाच नोकरीला होते मी रिटायरमेंट पर्यंत. तर मुंबईला असताना मुलगा गेला ऍक्सिडेंट मध्ये आणि आता मुलगी गेली 2 वर्षापूर्वी कॅन्सरने. ओके. तिची एक मुलगी आहे, एकीचं लग्न झालं, एक मुलगी आहे. तिची काळजी आहे फक्त मला. आता काळजी म्हणजे काय असतं, तिचं लग्न होईपर्यंत होण्यासाठी विचार करते मी. पण ती तिची सेल्फ डिपेंड आहे. जॉबला आहे ती अंधेरीला ऑफिसमध्ये. त्यामुळे तिची तशी काळजी नाहीये, पण तिचं लग्न होईपर्यंत आहेच ना ते असं डोक्यामध्ये तिचं व्यवस्थित करून द्यायला पाहिजे. पण तसा तिचा मला त्रास नाहीये. ओके. खूपच घटना घडल्यात ना तुमच्या लाईफ मध्ये. इतक्या घटना असू शकतात का हा प्रश्न पडतो मला. That's a very, अगर हमने ध्यान से अगर ये सुना है ना तो हमें समझ में आएगा ना कि क्या पेन से ये गुजरी है, कि उसने कैसे बताया ना की इतक्या घटना असू शकतात का डॉक्टर कोणाच्या आयुष्यात. म्हणजे इतने सारे चीजें किसी के साथ में हो सकती है क्या सर? हाँ, मिस्टर गए, लड़की गई, लड़का गया, हाँ, और एट द अर्ली एज 18 ईयर्स में ही उसकी शादी हो गई थी. और उसने कहा कि शादी होने के बाद में उसकी पढ़ाई छूट गई और उसको खेती में जाना पड़ा. और उसने वहां पे एक शब्द यूज किया कि ऐसा कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, या ऐसी कैसी जिंदगी मुझे मिली है. सो दिस इज अगेन अ प्रिस्क्राइबिंग फॉर अस. और ये अगर हम ये छोटी छोटी चीजें मिला के ही हम ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. और बस एक थोड़ा सा और सुनते हैं और उसके बाद में एनालिसिस और इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि और थोड़ा पार्ट है ना, अगर हमें उसकी और इंटेंसिटी हमें समझ में आनी चाहिए. स्वतःला खूप कम नशिबी समजताय ना. See the crying of the दुःख patient. जीवनामध्ये असतात, पण इतकी ह्या प्रश्नाचं उत्तर मला मिळत नाहीये. काहीच जगण्यासारखं राहू नये इतके दुःख वाटायला आलीत माझ्या. तुम्हाला काय वाटतं, ही खास बरी होईल का नाही होईल? तर त्याला व्यवस्थित औषधं मिळाली तर बरी होईलच ना सर. हा विचार करूनच मी घेत असते. तुम्हाला कसं वाटतंय, काय वाटतंय ते? एक 3 दिवसांनी पुन्हा एकदा फोन करतो. हा, मला फोनवर सांगा तुम्हाला कसं वाटतंय, काय वाटतंय ते. कि अभी हमने देखा ना कि इतने सारे दुख हो सकते हैं क्या सर, कि जिंदगी जीने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना. कुछ भी नहीं है जिंदगी जीने के लिए. कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए जिंदगी में कि जिसके सहारे या जिसके लिए मैं जिंदगी जीऊं. सो दिस इज द केस ओवरऑल. एंड नाउ आई एम नाउ up till now, I hope, yeah, I know you come to a certain group of medicine. और हमें अगर सिमिलिमम तक जाना है ना तो ये छोटी छोटी चीजें हमें मिलानी होगी, या ये छोटी छोटी चीजों के रूब्रिक्स हमें देखने हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना द हाउ ऑफ द पेशेंट. जिस तरह से उसने बात की है
और जिस तरह से उसकी बात हमें टच हुई है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, वो हमें इस केस में देखने हैं। तो अभी हम एनालिसिस और इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे केस के। सो दिस इज द पीपीटी। आई एम शोइंग यू द पीपीटी। Okay. This is a summary of the case. A 69 years woman suffering from skin and arthritis problem since 30 years. जो भी हमने अभी तक सुना है पेशेंट के बारे में, और उसकी लाइफ स्पेस कि द मैरिज टुक्स प्लेस वेरी अर्ली एट द एज ऑफ 18, मैरिड टू अ पर्सन हु इज इंडोलेंट। उसका जो हस्बैंड था वो नाकारा था, कुछ काम नहीं करता था, दैट्स वाई सफर्ड, lost educations, go to farm, father said you have to die there। ये जो भी केस है ना, तो ये पेशेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। मैं जब ये केस आपको दिखाऊंगा या शेयर करूंगा, तो ये व्हाट्सएप का भी ये थोड़ा सा पार्ट है, तो मैं आपको भेज दूंगा। और फिर उसके बाद में पेशेंट ने क्या क्या किया, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है कि किस तरह से उसने उसका एजुकेशन कंप्लीट किया। और उसके जो फादर थे, तो फादर सेड यू हैव टू डाई देयर, आपको वहीं पे ही जिंदगी गुजारनी होगी, आप मेरे पास नहीं आ सकते, ऐसा उसके पिताजी ने बोला था। क्योंकि उसके बाद में उसके छोटे छोटे बहनें भी थी जिनकी शादी भी होनी थी। उसने ये सब चीजें उसके माँ से भी शेयर की थी, मगर माई मदर इज ऑल्सो हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ माई फादर एंड द सिचुएशन, बट लेटर ऑन शी सपोर्ट मी फॉर एजुकेशन and along with farming I externally done my graduation, BA BEd, and during that period I abort 7 month, यानी उसका abortion भी वो टाइम पे हो गया था। then she take a job in Mumbai, उसने जॉब लिया। then उसका जो बेटा था, my son came topper in 10th and got a rank in GPAT, but within a 2 month of span he died in a rail accident। तो इतना टैलेंटेड लड़का भी उसका चला गया। देन उसने अभी कहा कि बेटा नहीं रहा तो क्या हुआ ना, मैं बेटी के साथ में गुजारा कर सकूंगी, मगर but my daughter, she also detect cancer and died, and in 2000 her husband also died। now she is alone with a grandchild of her daughter। such a painful life history of this patient। so हम इसको जैसे हम जैसे जो केस हम लिए हैं, तो उसे हम व्हाट, हाउ, व्हाई और साइकोडायनेमिक्स के हिसाब से हम देखेंगे। तो हम व्हाट ऑफ द पेशेंट हमें देखना है कि पेशेंट ने क्या क्या कहा है और किस तरह से उसने बातें प्रेजेंट की है। तो फर्स्ट हमें दिखाई देता है कि इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, जो भी हम एक रूब्रिक कॉमन सा है, एक रूब्रिक है, मगर ये रूब्रिक अगर हम सिलेक्ट भी करते हैं ना, तो बहुत सोच विचार के हमें ये रूब्रिक लेना है। इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे अगर ये रूब्रिक मिलता है तो आप लो, मगर इसको कंफर्म करो कि क्योंकि ये बहुत सारे शेड है ना, इरिटेबिलिटी है, एंगर है, रेज है, वायलेंट है, यानी बहुत सारे शेड है। अगर हम इरिटेबिलिटी तक रुक जाते हैं तो आगे का जो इंटेंसिटी है ना, वो हमें समझ में आना चाहिए। सो ये हमें मिलता, ये दिख रहा है पेशेंट में, जो व्हाट में भी है और हाउ में भी है पेशेंट के, कि इरिटेबिलिटी, कि चिड़चिड़ होते का, यानी वो टाइम पे आपके नेचर में क्या बदल होता है या स्वभाव में क्या चेंजेस आते हैं। तो उसने बोला ना कि बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है उस सर। अगर किसी का फोन भी आता है ना,
तो बात करने की इच्छा नहीं रहती हूँ, मैं फोन रख देती हूँ। एंगर, एंगर पेन्स अबाउट, क्वाइट वांट्स टू बी, बोलने की इच्छा नहीं होती है, तो मैं शांत हो जाती हूँ और हताश हो गई हूँ, डिस्करेज हो गई हूँ सर। इतने सारे यानी इतने सारे जो पेन्स हैं या इतने सारे लाइफ सिचुएशंस हैं, तो ये सब सिचुएशंस की वजह से हताश हो गई है, डिस्करेज। देन हाउ ऑफ द पेशेंट, ये हाउ ऑफ द पेशेंट है ना, तो जिस तरीके से उसने बात की है ना, अभी पेशेंट तो हमारे पास है नहीं ना सामने, ये तो फोन पे हो, हमने केस लिए है, तो फोन पे भी लेने के बाद में भी हमें उसका इंटेंस पेन फील होता है। और फर्स्ट जो पेन है ना, वो तो हाउ में भी आता है, तो वो है एंग्विश। ये पूरे केस में हमें उसका एंग्विश दिख रहा है, चाहे वो उसके लाइफ स्पेस की जो सिचुएशंस है, या वो जिस 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 इससे गुजरी हुई है, या जो जो हादसे उसके लाइफ में हुए हैं, या तीन तीन बड़े हादसे उसके लाइफ में हुए हैं, और वो जो हादसे से वो गुजरी है, तो वो गुजरने के बाद में भी वो हर एक के बाद में वो कर रही थी, प्रयास कर रही थी कि चलो कुछ नहीं, बेटा गया तो कुछ नहीं, बेटी है, बेटी भी गई तो हस्बैंड है, हस्बैंड तो नाकारा निकला। सो दिस इज द एंग्विश, एंग्विश ऑफ दिस लाइफ। देन सैडनेस, क्या कर सकती हो ना सर, हेल्पलेस हो गई हो, या कुछ नहीं कर पा रही हो सर, चार चार डॉक्टर हो गए, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, और किसी ने कुछ तो रिलीफ देना चाहिए ना, अगर मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ सर, कुछ नहीं हो रहा है सर। ऐसा लगता है कि अभी जान दे दूं, छोड़ दूं, सुसाइड कर लूं। सो दिस इज अ सैडनेस, डिस्पेयर एंड कंटेम्पचुअस। दिस इज अ कंटेम्पचुअस रन फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस। अगर हम ध्यान से सुनते हैं ना, तो अपने जो मैंने सवाल पूछा है ना, तो वो सवाल में भी उसका कंटेम्प्ट झलक में आ जाता है। यानी डॉक्टरों ने भी उसको ट्रीट नहीं किया है, उसके बारे में भी उसका कंटेम्प्ट है, और लाइफ के बारे में भी कंटेम्प्ट है कि ऐसी कैसी जिंदगी मेरे हिस्से में आई है, हाँ, ऐसी कैसी जिंदगी मुझे मिली है। तो ये कंटेम्प्ट है ना, ये रन होता है। ये सब आप ले लो, यानी इसका रुब्रिक बनाओ नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये आपके पास डाटा होना चाहिए। ये हाउ ऑफ द पेशेंट, देन व्हाई ऑफ द पेशेंट। व्हाई तो इतना क्लियर है पेशेंट में, लाइफ इंसिडेंट्स जो भी उसके साथ में हुए हैं, कि अर्ली मैरिज, देन इनएक्टिव हस्बैंड, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, डेथ ऑफ हाईली ब्रिलियंट सन ड्यू टू एक्सीडेंट, डेथ ऑफ हस्बैंड, डेथ ऑफ डॉटर ड्यू टू कैंसर। सो ये सब चीजें जो उसके लाइफ में हुई है ना, ये इन वजह से उसको ईचिंग है, या इन वजह से उसको संधिवात हुआ है। अभी आगे चल के जो मैं अभी जो स्लाइड है जो आपको प्रेजेंट करने वाले हो, तो वो मैं साइकोडायनेमिकली आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या हुआ है उसके साथ में। तो हम और ये जो रेमेडी है उसके और क्लोज जाएंगे। साइकोडायनेमिक्स ऑफ द केस, द स्किन इरिटेशन बिकॉज सच अ सप्रेस एंगर अबाउट लाइफ। ये जो उसका जो गुस्सा है ना लाइफ के प्रति, ये गुस्सा यानी बचपन से लेके अभी तक, यानी 69 रनिंग तक है, और ये गुस्सा उसका नहीं गया है। वो गुस्सा वैसे के वैसे है ना, इसकी वजह से उसको इरिटेशन हो रही है, उसकी वजह से ईचिंग हो रही है। सो दिस इज अ साइकोडायनेमिक्स। ये राव सर बहुत अच्छे से समझाते थे, यानी वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें राव सर से सीखने को मिला ये छोटी छोटी चीजें। देन व्हाट लाइफ डन टू हर, जिंदगी ने उसके साथ क्या किया है, दैट इरिटेशन रिमेन अ ब्लेम लीड टू ट्रिमेंडस ईचिंग, नो रेस्ट, नो सुकून। जिस तरीके से लाइफ ने उसके साथ बिहेव किया है, वो उसे चैन से नहीं जीने दे रहा है, और ये चैन से ना जीना ही उसकी खुजली है। ये चैन से ना जीना ही उसको रात को नींद नहीं आ रही है, और ये सब चीजें उसको परेशान कर रही है।
और उसको सुकून नहीं दे रही है, नो रेस्ट एंड नो सुकून। देन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स यानी हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सभी लोग जो हमें जिंदगी में आगे चलने के लिए मदद करते हैं, यानी हमारी जिंदगी उनके सहारे चलती है या उनके साथ चलती है। और ये जो सहारा है या उनका जो साथ है, उससे हमारी लाइफ स्मूथली जाती है, लाइफ में फ्रिक्शंस नहीं होते हैं, काफी स्मूथली हमारी लाइफ होनी चाहिए। मगर जब ये रिलेटिव्स या ये सहारे हमारे नहीं रहते हैं या छूटते हैं या उनमें दरार आती है या कुछ हो जाता है, तो हमें आर्थराइटिस या संधिवात होता है। हमारी मूवमेंट अच्छे से नहीं होती है, नो सपोर्ट फॉर मूवमेंट, नो लव, अभी वो प्यार नहीं बचा है, ना केयर, कोई केयर करने वाला नहीं है, नो हैप्पीनेस। किसी कोई तो होना चाहिए ना लाइफ में जिसके लिए मैं जीऊं, या जिसके लिए मैं खुश हूं, या जिसके लिए मैं कुछ कर पाऊं। एक ग्रैंड चाइल्ड है, वो तो ठीक है सर, मैं उसके लिए कर रही हूँ या उसके लिए ही जिंदगी जी रही हूँ, मगर वो भी सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उसकी भी कोई मुझे चिंता नहीं है। मगर हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस है ना जो जैसे ही, शादी हो गई तो वहां से जो उसका हैप्पीनेस निकल गया है ना लाइफ का, तो अभी भी उसकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। एंड दैट लीड्स टू इमोबिलिटी, दैट लीड्स टू स्टिफनेस, दैट लीड्स टू स्टैग्नेशन ऑफ एवरीथिंग। ये वहीं पे रुक गई है, यानी जिंदगी का फ्लो जो आगे होना चाहिए ना, वो वहीं पे रुका हुआ है। सो दिस इज केस। एंड अभी तक आपने केस जो सुना है, वो उस तरीके से और जिस तरीके से मैंने आपको ये प्रेजेंट किया है, ये मेरे प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक थे। मैंने ज़्यादा जो मुझे सबसे नज़दीक और सबसे टच हो गए थे, वो ये जो 2 रूब्रिक थे, ये मैंने केस में लिए हैं। डेल्यूजन रूब्रिक टेकन फॉर द केस, डेल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज। ये टॉर्मेंट है ना, ये हम आगे चल के समझेंगे। ये थ्रू आउट पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री हमें बताते हैं। ये जो शब्द है टॉर्मेंटेड, द वर्ड शी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग हर इचिंग ना, उसने उसके खुजली के लिए एक शब्द यूज किया था की दहशत वाटते, मला दहशत वाटते की कधी काय होईल, केव्हा ही खाज येईल आणि माझं कसं होईल, मुझे चैन से कब इससे राहत मिलेगी। सो ये दहशत है ना, सो दिस इज द टॉर्मेंट ऑफ द पेशेंट। देन सेकंड रूब्रिक ना जो मैंने लिया था इस केस में, काफी सारे रूब्रिक हम ले सकते हैं, और मैं तो जो भी सुन रहे हैं होम्योपैथ या जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो मैं उनको भी बताऊंगा कि अब जो भी आपको लगता है ना, तो वो रूब्रिक आप लिख के लो। चाहे वो इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग है, ये रेमेडी इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में भी है, ये रेमेडी डेल्यूजन परसिक्यूटेड में भी है, ये डेल्यूजन परस्यूड में भी है, परस्यूड बाय एनिमीज। तो ये नहीं कि आपने वो रूब्रिक लिए तो आपकी जो टोटलिटी है वो वहां से ही आपको चाइना ऑफिसियलिस आएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 ही रूब्रिक लिए तो ये काफी बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है। मगर हमें कोर तक पहुंचना है, क्योंकि क्या है ना कि ये हमारे पास घूम के आई है केस। अगर ये हमारे पास फर्स्ट टाइम अगर आती है, केस आती थी, तो इतने दिक्कत नहीं है। मगर 4 होम्योपैथ होने के बावजूद अगर कोई उसको रिलीफ नहीं दे रहा है, तो इट्स अवर टास्क या ये अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उसे रिलीफ देना है। ये जो राव सर चाहते थे ना कि होम्योपैथी का जो नाम है वो हमें बढ़ाना है, तो हमें वो लेमैन को समझना है या वो पेन को समझना है। शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रेमेडीज दी होगी उसको, मगर जो ये रूब्रिक है डेल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, एंड जो सेकंड रूब्रिक जो मैंने ये केस में लिया था कि डेल्यूजन अनफॉर्चुनेट ही इज,
मैंने सवाल भी पूछा था उसको कि स्वतःला कम नशीबी समझता का, अपने आप को अनफॉर्चुनेट आप समझ रहे हो क्या? और यही तो चीज है ना उसके लाइफ में, बचपन से लेके उसके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। सो ये अनफॉर्चुनेट फीलिंग है ना, वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और पूरी जर्नी आपको चाइना की मैं एक्सप्लेन करूंगा कि चाइना क्या है, इन एंड आउट। आज ही हम चाइना सीखेंगे और कल हम हमारे क्लिनिक में यूज करेंगे। चाइना यानी सिंकोना, ये जो रेमेडी है, ये तो इसकी वजह से ही हमें होम्योपैथी मिली है। तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सैमुअल हैनीमैन सर कि आपने इतना अच्छा साइंस हमें दिया है और इतनी वंडरफुल रेमेडी हमें दिए हैं। शायद हम डे टू डे इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ये रेमेडी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मगर जैसे ही हमें अब आज ये रेमेडी के बारे में पता चलेगा ना, तो कल से हम ये रेमेडी और फ्लुएंटली दे सकेंगे, या देते आ रहे हैं तो हमें और एक नया एंगल ये रेमेडी का मिलेगा आज। सो these are some other important rubrics of China: irritability, pain during, anger, pains about, delusion, wrong suffered he has, complaining, censorious, critical, absorbed, buried in thoughts, contemptuous, despair, pains about, and brooding. सो ये अल्सो रूब्रिक, ये पैरेलल रूब्रिक है जो ये केस में हमें और मार्कली मिल जाते हैं। इरिटेबिलिटी तो हमको दिख रही है, एंगर, पेन्स अबाउट, ये जो भी चीजें है ना, व्हाट इज द पेन्स ना, है हादसे, उसके लाइफ में जो हादसे हुए हैं ना उसके बारे में उसको गुस्सा है, चाहे वो डेथ एक के बाद एक उसके लाइफ में हुए हैं, चाहे उसको सीखने को नहीं मिला इनिशियल लेवल पे, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फादर ने सपोर्ट नहीं किया, फादर ने कहा कि तुझे वहीं पे मरना है, पूरी जिंदगी वहीं पे गुजारनी है। तो ये जो चीजें हैं ना, तो ये उसको ये गुस्सा है उसके लाइफ के बारे में, उसके लाइफ सिचुएशंस के बारे में। सो एंगर, पेन्स अबाउट, डेलीजन, रॉन्ग सफर्ड, ये कैसी जिंदगी मुझे मिली है ना सर, कितना सही से और कितना स्पॉन्टेनियसली उसने ये जवाब दिया था ना की असं कोणाचं आयुष्य असतं का, इस तरीके की किसी को जिंदगी मिल सकती है क्या सर, और मेरी बारे में ऐसे क्यों हुआ है? और इतने अगर हादसे अगर लाइफ में हुए तो किसके लिए मैं जी सकती हूँ ना। सो दिस इज अ रॉन्ग सफर्ड फील। ये रॉन्ग सफर्ड के साथ में कंप्लेनिंग भी है, इसकी कंप्लेनिंग भी है, कंप्लेनिंग फादर के बारे में है, कंप्लेनिंग उसके हस्बैंड जो इंडोलेंट है, इनएक्टिव है, उसके बारे में भी है, कंप्लेन लाइफ के बारे में भी है कि एक एक बाद एक कैसे हादसे दिए, कंप्लेनिंग जो होम्योपैथ सॉरी जो जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उसको ट्रीट किया है, जिसने रिलीफ नहीं दिया है, उसके बोलने में वो कंप्लेनिंग झलकती है। सेंसोरियस है, क्रिटिकल है, एब्जॉर्ब, बरीड इन थॉट है, आज भी वो सभी हादसे उसको ताजे हैं, उसकी लाइफ मूव ही नहीं हो रही है, जैसे कि वो वहां पे ही स्टक हो गई है, जैसे मैंने बोला ना कि स्टैग्नेंट हो गई है। कंटेम्पचुअस है, डिस्पेयर, पेन्स अबाउट है, अब हार गई हो सर, 69 ईयर्स चालू है सर, कोई भी किसी भी वजह से मुझे रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करूं, हारू नहीं तो क्या करूं। सो दिस इज द डिस्पेयर और ये ब्रूडिंग है। देन एक जगह पे होपफुल भी है। मैंने जैसे ही पूछा ना उसको कि आपको क्या लगता है कि आप होगे, ठीक होगे कि नहीं होगे, तो उसने क्या कहा ना कि अगर अगर अच्छे से दवाई देते हो ना सर तो क्यों नहीं ठीक होंगी। तो ये होपफुल भी है, एक जगह होपफुल के साथ में डिस्करेज भी है, और सुसाइडल डिस्पोजिशन भी उससे झलक रहा है कि कहीं से भी उसको किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिल रही है, या कोई भी ये जो परेशानी है उससे आराम नहीं हो रहा है। एक जैसे पहले तो उसने बोला था, यानी जैसे ये तो केस मैंने फॉरवर्ड करके आपको दिखा ही, तो एक जगह पे उसने बोला भी था कि पहले तो ओका सेट करके मुझे रिलीफ भी मिल जाता सा, एंटी एलर्जिक टैबलेट लेके थोड़ा सा,
मगर आज वो टैबलेट भी मैं अगर ले रही हूँ ना तो उससे भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, सच ए पेन्स। और अभी जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना सर, तो ऐसा लगता है ना कि सुसाइड कर लो। सो दिस इज अ सुसाइडल डिस्पोजिशन। एक अच्छा रूब्रिक भी है आगे चल के चाइना में कि सुसाइडल डिस्पोजिशन बट विदाउट करेज। सो दिस इज अ जर्नी ऑफ चाइना इन दिस केस। मेरे केस की मैं आपको जर्नी बताता हूँ कि इरिटेबिलिटी से स्टार्ट हुई थी, छोटी छोटी बातों पे, चीजें पे वो इरिटेट होती थी। परसिक्यूट, जैसे लाइफ ने उसको जिस तरीके से एक के बाद एक उसको हादसे दिए हैं, या एक के बाद एक उसके पीछे ही पड़े हैं, जैसे उसको रिलीफ ही नहीं मिला है लाइफ में, सुकून की जिंदगी नहीं मिली है लाइफ में, कोई ना कोई चालू है उसके लाइफ में। तो इरिटेबिलिटी, परसिक्यूशन, परस्यूड एंड देन लीड्स टू टॉर्मेंटेड। ये टॉर्मेंटेड फीलिंग है। अभी हम टॉर्मेंट को समझेंगे। टॉर्मेंटेड मीनिंग इज टू हैरेस persistently in cruel or annoying way, like a torture, lead to extreme distress of body and mind। जैसे उसे persistently harass किया जा रहा है, एंड harass नॉट ओनली, यानी harass किस तरीके से ना, इन अ क्रूएल मैनर, in an annoying way, it's like a torture। So this is the intense suffering, intense feeling of harassing by someone or someone who life। But what makes China feels tormented? Because China is too much sensitive। चाइना क्यों टॉर्मेंटेड होती है ना? बिकॉज चाइना इज टू मच सेंसिटिव। चाइना बहुत सेंसिटिव रेमेडी है। सेंसिटिव फॉर एक्सटर्नल इंप्रेशंस, सेंसिटिव फॉर मॉरल इंप्रेशंस। इसी के लिए तो इग्नेशिया की काफी क्लोज भी जाती है, मॉरल्स है। और इग्नेशिया के जैसे हम बोलते हैं ना कि एक आइडियलिस्टिक भी है, जैसे इग्नेशिया आइडियलिस्टिक है वैसे चाइना भी एक आइडियलिस्टिक पर्सन है। जैसे चाइना ने बेयर किया है, इग्नेशिया भी सफरिंग बेयर करती है। माइल्डनेस, बेयर सफरिंग, आउटरीच विदाउट, इग्नेशिया में भी है। मगर इग्नेशिया की जो रिएक्शन है ना वो टॉर्मेंटेड नहीं है। इग्नेशिया डिसकंसेंटेड हो जाती है। इग्नेशिया बोलना बंद कर देती है, काम करना बंद कर देती है, छोड़ देती है सब चीजें। डिलीजन रूइन, जैसे उद्ध्वस्त हो गई है उसकी लाइफ, रूइन हो गई है, वो एक इग्नेशिया है। हम चाइना को क्यों नहीं चाइना आती है ना, आज हमें आज अगर हम ये सीखते हैं ना कि चाइना भी उतनी ही सेंसिटिव है, चाइना भी इरिटेबिलिटी में है, चाइना भी परसिक्यूटेड में है, पेन्स में है, तो चाइना भी उतनी ही सेंसिटिव है। और चाइना में एक और रूब्रिक है कि फियर ऑफ बीइंग हर्ट बाय अदर्स, किसी से हर्ट होने का डर, ये चाइना में है। ये है एवरीथिंग अपसेट्स चाइना। ये सब चीजें चाइना को अपसेट करती हैं। सब चीजें जो भी उसके साथ में हो रहा है, एनवायरमेंट से हो रहा है, तो ये सब चीजें चाइना को अपसेट करती है। एडमोनिशन, काइंड वर्ड, केयरसिंग, टच एवर्जेंस टू, ये भी चाइना में है। सेंसिटिविटी की जो लेवल है चाइना की, वो अगर हम समझते हैं ना, तो फियर ऑफ कैट्स, फियर ऑफ चिकन, फियर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल who supposed to be harmless, this reflect the inner sensitivity which easily frightened by trifles obstacles, so hindered and so tormented। जैसे उसकी सेंसिटिविटी कितनी है ना, कौन सी चीजों का डर लगता है चाइना को, जैसे कैट्स है, चिकन है, जो हार्मलेस एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हार्म नहीं कर सकते हैं, उनसे भी उसको डर लगता है। सो इतनी सेंसिटिविटी चाइना की बढ़ जाती है जब उसके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं या हादसे आते हैं। और ये प्रॉब्लम्स भी क्यों आते हैं ना चाइना की जर्नी में आपको आज पूरी बताऊंगा कि क्यों ऐसे टॉर्मेंट में चली जाती है चाइना के ऐसे कौन से चीजें हैं, यानी पर्सनैलिटी क्या है चाइना, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या पर्सनैलिटी है। क्योंकि एक जगह पे केस में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा,
तो उसने बोला था कि मेरी लाइफस्टाइल की वजह से ना सर मुझे काफी परेशानी हुई है। तो ये लाइफस्टाइल क्या है ना चाइना की, ये आज हमें समझना है। So because of this sensitivity, because of this obstacle, because of his hindered, उसको आगे नहीं जाने देने जा रहा है, वो hindered है। यानी जैसे सिचुएशन में उसको स्कूल छोड़ना पड़ा या उसको परेशानी हो गई है, ये हिंडर्ड ही है उसके लाइफ में। आज भी ये खुजली की वजह से वो ना तो पढ़ाई कर सकती है, ना बुक टीवी देख सकती है, ना कुछ काम कर सकती है। हिंडर्ड एट वर्क, ये स्पेशल रूब्रिक है चाइना का। काम में हिंडर्ड होता है चाइना। सो पर्सन्स बिकम अ वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। ये दोनों भी हैं, चाइना कॉशियस में भी और केयरफुल भी है। अगर इतने सारे परेशानी होती है तो चाइना कॉशियस भी होता है और केयरफुल भी होता है। ये केस में जैसे मैंने आगे चल के फॉरवर्ड किया था, तो उसने बताया कि उसके हाथों में बहुत क्रैक्स हो गए हैं ना, इतने सारे क्रैक्स हो गए ना, तो वो खा नहीं पा रही है। आप अगर आप फॉलोअप देखोगे और आपने फॉलोअप देखा भी होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से उसकी लाइफ थी, और चाइना देने के बाद में व्हाट फैंटास्टिकली उसकी लाइफ चेंज हो गई है, कितना रिलीफ हो गया उसको। सो वो कॉशियसली काम करने लग जाती है, केयरफुल हो जाती है कि मुझे कोई हर्ट ना करे। चाइना बहुत सोच समझ के बातें करती है। द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइना, ये जो लाइफस्टाइल है ना चाइना की, ये लाइफस्टाइल चाइना की उसको टॉर्मेंट तक ले जाती है। चाइना पर्सन गोज टू टॉर्मेंट एंड हिंडर बिकॉज ऑफ हिज नेचर्स अकॉर्डिंग टू लिटरेचर। चाइना इज, जैसे ही लिटरेचर में चाइना बताया गया है तो वो ये लिटरेचर है। चाइना इज अ ग्रीडी पर्सन, डिजायर, इनडेफिनेट डिजायर है चाइना में। प्लान्स मेकिंग मेनी, बहुत सारे उसके दिमाग में प्लान चलते रहते हैं, और उसकी डिजायर भी काफी इनडेफिनेट है। यानी छोटी छोटी चीजों में चाइना खुश नहीं होता है, उसके प्लान्स भी काफी बड़े रहते हैं। और ये सब चीजों को पाने के लिए चाइना बिकम ऑब्स्टिनेट, काफी जिद्दी हो जाती है। डिक्टेटोरियल, जो उसके साथ में है या जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, उनके साथ में चाइना का बिहेवियर वेरी डिक्टेटोरियल। क्योंकि चाइना को एक पता रहता है कि वो ये सब चीजें कर सकती है, और चाइना में एक रूब्रिक है आइडियलिस्टिक। तो उसकी उसकी जो थॉट प्रोसेस है ना, उसने कुछ बनाया हुआ है आइडियल, और वो हिसाब से उसको जिंदगी जीनी है। तो ये चीजें उसके लाइफ में है, और वो वही, यानी वो तत्व, जैसे आइडियलिस्टिक, यानी वो जो तत्व है ना, वो तत्व के लिए वो जीती है, कि वो तत्व में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, वो प्रिंसिपल से जीती है। तो ये प्रिंसिपल्स उसके लाइफ में होते हैं, और वो प्रिंसिपल्स अगर फुलफिल नहीं होते हैं या कुछ बाधाएं उसमें आ जाती है ये फुलफिल में, तो चाइना में दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज ऑब्स्टिनेट, सो डिक्टेटोरियल, अ वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन, बहुत काम काज करते हैं, वेरी सेल्फिश, काफी मतलबी पर्सन है चाइना। डोंट मेक अ पिक्चर ऑफ दिस चाइना, डोंट मेक कि चाइना ऐसे ही है। नो, नो रेमेडी इज गुड और नो रेमेडी इज बैड, बट ये चाइना की पर्सनैलिटी है, ये ऐसी चाइना है लिटरेचर में बताई हुई। तो वही मैं चीजें आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। चाइना इज अ गवर्नमेंट, बहुत शौकीन है, और एक लिबर्टिनिज्म का रूपरेख है चाइना में। चाइना को चीजें उसके हिसाब से करनी है, और वो जैसी चाहती है वो हिसाब से उसको होनी चाहिए, और उसके लिए उसको लिबर्टी होनी चाहिए। अगर लिबर्टी उसको नहीं मिलती है या एनी हाउ उसको कहीं पे परेशानी हो जाती है, तो चाइना में दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। तो ये लिबर्टी चाइना को होनी है। उसके बाद में हटी है, डिसओबीडियंट है, किसी का सुनना नहीं है, अपने ही सुनाना है और अपना ही करना है। और दैट हॉटीनेस, डिसओबीडियंट बिकम अ कंटेम्पचुअस एंड बिटर। और लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं या स्ट्रगल आता है लाइफ में, सबसे ज्यादा एक एक स्पेशल एक रूब्रिक है चाइना में, इरिटेबिलिटी, वीकनेस। तो चाइना को वीकनेस नहीं चाहती है चाइना।
चाइना चाहती है कि वो काम खुद करे और उसके हिसाब से और जैसा उसको लगता है वैसे होने चाहिए। और वो अगर नहीं होती है और उस दौरान अगर वो कहीं पे भी कम होने जा यदि उसकी शक्ति कम होती है या वो नहीं कर पाती है खुद से, तो फिर उसमें कंटेम्पचुअस आना शुरू हो जाता है, बिटरनेस आना शुरू हो जाता है। और उस दौरान अगर कोई उसे अच्छे से उससे बात भी करे या प्यार से बात करे या प्यार से उसको समझाए, तो भी चाइना गुस्सा करती है। और वो बिटरनेस चाइना का दिखता है, उसको केयर सिंह भी अच्छी नहीं लगती है। कोई प्यार भी करता है ना तो उसको बुरा ही लगता है। सो दिस इज द पर्सनैलिटी ऑफ चाइना। देन being such a personality, if thing doesn't go with the wish he feels hindered, wrong suffered and feels unfortunate। अगर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं होती है या कई जगह पे वो स्टक हो जाती है, तो वो अपने आप को हिंडर्ड महसूस करती है, अपने आप को रॉन्ग सफर्ड महसूस करती है और फिर अल्टीमेटली आपको अनफॉर्चुनेट महसूस करती है। और ये सब चीजों की रिएक्शन है ना, द रिएक्शन इज लाइक अ डिसकंटेंट, लैमेंटिंग। हमने हमारे केस में भी लैमेंटिंग है जो हमें दिखता है, लैमेंटिंग, कंप्लेनिंग, श्रीकिंग, discourage, despair, sadness and suicidal disposition, but lack of courage। सुसाइड तो करना चाहती है मगर उतनी हिम्मत नहीं होती है चाइना में। अभी दिस इज अ वेरी, ये एक चीज है क्रक्स ऑफ चाइना मेटाफोरिकली, जो ये स्लाइड के लिए आई एम थैंकफुल टू सुनील गोड़के सर। सर आपने इतना अच्छी तरीके से चाइना बताया है और ये चीज भी आपने इतनी अच्छी से चाइना के बारे में समझाई थी कि द क्रक्स ऑफ चाइना मेटाफोरिकली हम चाइना को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं ना अप टिल नाउ। जैसे हमने लिटरेचर में भी सुना है और जैसे हमारे सर लोगों ने भी हमें बताया है, जैसे एलन स्किनोट है, तो एलन स्किनोट में इनिशियल अब एक जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, तो हम हमें उस लाइन में क्या बताया गया है ना कि चाइना के बारे में कि इट इज अ यूजफुल रेमेडी फॉर एलमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। वाइटल फ्लूइड अगर लॉस होता है तो हमें चाइना देनी है। तो चाहे वाइटल फ्लूइड ब्लड लॉस हो या सिक्रीशंस है या कोई भी वाइटल फ्लूइड्स है जो चले जाते हैं लाइफ यानी बॉडी में से, तो चाइना देनी है। ये हमने उसका मीनिंग अब तक हम समझते थे, मगर एक क्रक्स है चाइना का कि वाइटल फ्लूइड, जैसे राव सर भी हमें बताते थे ना कि आपको मेटाफोरिकली भी पेशेंट को समझना है कि लाइफ में अगर, और ये चीजों में तो राव सर मास्टर थे और उनके साथ में बैठ के मैंने कितनी ग्रेवियस पैथोलॉजी के केसेस भी देखे थे कि जहाँ पे सर ने बहुत कम पूछने के बाद में भी सर सिमिली में आते थे। तो सर मेटाफोरिकली चीजों को समझते थे अच्छी से। तो चाइना का मेटाफोर क्या है ना कि एज इफ वी ऑल नो चाइना इज अ रेमेडी फॉर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड like a blood loss। And what is a vital fluid? Blood loss metaphorically, the things which is essential for life। लाइफ के लिए जो जो चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसकी बिना हम लाइफ जी नहीं सकते हैं, दैट इज द वाइटल थिंग। अगर वो चीजें लाइफ में से चली जाती हैं तो हम उसे कहते हैं कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। और हमारे लाइफ में कौन सी चीजें है कि जिसके बिना हम जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये चीजें होनी ही है लाइफ में। ऐसी क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल आवर बिलोड लव्ड वन, हमारे जो जो हमारा साथ देते हैं, जो हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, वो सब लोग, ये हमारा वाइटल, यही हमारी वाइटल फ्लूइड है, यही हमारा ब्लड है। ब्लड के बारे में राव सर ने बताया ना कि व्हाट इज ब्लड ना, ब्लड
इज अ थिंग ना, ये जिंदगी है, लाइफ है, जैसे रिलेटिव्स है, यानी जैसे हम ब्लड को समझते हैं ना कि ये जैसे खून के रिश्ते हैं, अगर हम समझ गए तो हमको ब्लड लॉस समझ में आएगा। अगर खून के रिश्तों में कहीं पे हमें ये पता चलता है कि खून के रिश्तों में दरार आ गई है, या खून के जो भी रिश्ते हैं खून के, यानी बहुत नजदीकी लोग जैसे भाई हैं, बहन हैं, माता पिताजी हैं, कहीं अगर ये चले जाते हैं लाइफ में से तो ब्लड लॉस होता है। और ये मेटाफोरिकली मीनिंग है, क्रक्स ऑफ चाइना, यही तो चाइना है कि ये जिंदगी से चले जाते हैं, ये चीजें उसकी जिंदगी से चली गई। और ये केस में भी हमें दिखता है कि ना तो उसको प्यार करने वाला उसका हस्बैंड था, उसकी डेथ हो गई है आज। उसका ब्रिलियंट सन था जो 10th में मेरिट में आया था, और उस वो ही इज अ रैंक होल्डर, और ट्रेन एक्सीडेंट में यानी उसकी डेथ हो गई। बेटा गया, उसकी बेटी गई कैंसर से। तो ये जो भी है ना, ये लव्ड वन है, ये पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, अ केयर टेकर, ब्लड लॉस, वाइटल फ्लूइड, अ केयर टेकर, क्लोज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम बहुत सारी चीजें हमारे पेरेंट्स से नहीं शेयर करते, मगर हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों से। सो क्लोज फ्रेंड्स, मनी, मनी इज एंड अगेन अनदर इंटरेस्टिंग फैसेट। चाइना में मनी का एक अलग फैसेट है। ये केस में नहीं है, मगर मेरे पास बहुत सारे एक और भी यानी केसेस हैं चाइना के। राव डे सेमिनार था तो वहाँ पे भी मैंने एक चाइना की केस बताई थी। तो वहाँ पे भी एक मनी का फैसेट आता है चाइना में। और मनी, हम क्या बोलते हैं ना कि लाइफ जीने के लिए एसेंशियल है, तो वाइटल है। तो मनी का लॉस भी चाइना को सहन नहीं होता है। तो मनी इज ऑल्सो नेसेसरी टू लिव इन दिस वर्ल्ड। द थिंग्स ऑन विच यू आर डिपेंडेंट, you need a most which are absolutely necessary. If anything from above loss means died, death of loved person goes to 4 second। और ये मेरा सेकंड रूब्रिक था, 4 second फीलिंग, अनफॉर्चुनेट एंड 4 second फीलिंग। 4 second फीलिंग का जो मतलब है ना कि अभी उसको सब छोड़ गए हैं। ये रॉन्ग यहाँ पे हो गया, कम नसीब, वो अनफॉर्चुनेट का डाला गया है, मगर 4 second फीलिंग है ना कि अभी उसके साथ में कोई नहीं रहा, ये सब छोड़ गए और अकेली पड़ी हुई है। एंड दैट मेक्स अ पर्सन बिटर। और ये सब हालातें ही पेशेंट को बिटर करती है। स्वीट टेस्ट बिटर, माउथ, यानी जैसे हम माइंड देखते हैं तो वैसे बाकी के सेक्शंस भी हैं, जिसमें माउथ सेक्शन है तो वहाँ पे सलाइवा टेस्ट बिटर, स्वीट टेस्ट बिटर। कोई भी अच्छी चीजें अगर चाइना को कोई ऐसे हालात में अगर कोई बोलता है ना, तो चाइना को वो चीजें भी बिटर लगने लगती है, यानी कड़वाट पना उसके जिंदगी में आता है। मगर एम बिटर्ड ये रूब्रिक में चाइना नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि वहां पे वो होना है, नहीं होना है, मगर वो होता नहीं है वहां पे एम बिटर्ड में। चाइना चाइना बिटर फील करता है, मगर कहीं पे भी। और जैसे ये पेशेंट में भी है ना कि वो सपोर्ट कर रही थी ना एक होम्योपैथ उसको, यानी उसको मेडिसिन दे रहे थे और ये दे रहे थे, तो उसको वो उसके लिए भी वो चाहती थी। तो ये बिटरनेस है ना चाइना के, ये लाइफ के बारे में ज्यादातर की हमें आज देखने को मिला है। सो दिस इज जर्नी ऑफ चाइना ऑफिसियलिस। और आई होप you like this China officialis. I stop sharing. Thank you, and love you all. Love you all, the entire HHF family. मैं ये स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। और फ्रेंड्स, अभी हमने जो मेडिसिन देखी हैं चाइना ऑफिशियलिस, सो
इसके और काफ़ी फैसेट हैं, और मैं किस तरह से डे टू डे इसमें चाइना देखता हूँ, या सिंपली जैसे एक सुनील सर जैसे बताते हैं ना केस में, कि दो दो रूब्रिक आप पकड़ो और दो रूब्रिक को कंबाइन करो और आप इजीली एक रेमेडी दे सकते हैं। जैसे सेपिया है, कि एम्बेरसमेंट है, पुअर है, हमें दिखता है तो हम सेपिया दे सकते हैं। तो वैसे भी चाइना का एक फैसेट है कि हमें इरिटेबिलिटी दिखती है चाइना में, और इरिटेबिलिटी के साथ में हमें हिंडर्ड भी दिखता है चाइना में, हिंडर्ड एट वर्क, काम नहीं हो रहा है। जैसे मेरे पास यानी सर्दी के पेशेंट है, क्रॉनिक कोराइजा है, कि जहाँ पे भी पेशेंट ऐसे बोलते हैं ना कि सर ये अभी थक गया हूँ सर, ये जो सर्दी है वो जा ही नहीं रही है, कितना भी मैं करूँ, और उसकी वजह से ना तो मैं पढ़ाई करता हूँ, ना तो मैं काम कर सकता हूँ, ना तो मेरे से कुछ हो रहा है सर। और ये अगर आपको दिखता है और वो पेन दिखता है, और उसकी वजह से अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि ये बहुत अभी टॉर्मेंट हो गया है इसकी वजह से, तो हम चाइना उसको दे सकते हैं। हम्म? और एक इम्पॉर्टेंट फैसेट जो मैं देखता हूँ, आप हो सके तो आप भी देखो उसको, और ये मुझे मिला है, जितने भी मेरे चाइना के जो पेशेंट हैं, तो मुझे ये मिला है, चाइना में ना एक सेंसिटिविटी है, और चाइना में ना एक रूब्रिक है, आर्ट एबिलिटी फॉर। तो ये चाइना एक इज आर्टिस्टिक पर्सन, उसमें एक आर्ट एबिलिटी है। एक राउडे सेमिनार था जलगांव में, तो वहां पे मैंने एक चाइना की केस एक्सप्लेन की थी। तो वो चाइना के केस में भी ऐसा ही था ना, कि उसको आईबीएस था, अ, वो टीचर थी, और उसको गुस्सा ये था कि एज अ टीचर और मुझे ये प्रॉब्लम्स होने के वजह से आई एम पासिंग फ्लैटर्स, और उसकी कितना बुरा लगता है ना सर, कि मुझे क्लास छोड़ के बाहर जाना पड़ता है ग्राउंड में, और अभी मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तो वो टॉर्मेंट फील था उसका, वो परसिक्यूशन थी उसमें, वो इरिटेबिलिटी थी, वो पेन के बारे में, एंगर्स पेन्स अबाउट था, वो पेन के बारे में काफ़ी गुस्सा थी। और एज अ नोबल जॉब में अगर आपको ये बीमारी आती है सर, तो ये कैसी बीमारी मुझे मिली है, और उसके लाइफ में भी रॉन्ग सफर था, मैंने दिखाई थी वो केस। तो यहाँ पे भी चाइना में ना वो लेडी थी ना, वो काफी अच्छे से कविता लिखती थी, वो शी इज अ पोएट। तो वो काम में भी उसको करने में दिक्कत आती थी, मगर उसने बोला था, जैसे मैंने किया था कि आपके हॉबीज क्या है, तो उसने बोला था कि सर मुझे कविता करना अच्छा लगता है। और ये जो लेडी है जो मैंने आपको आज प्रेजेंट की है ना, तो शी इज ऑल्सो गुड, यानी वो काफी उसने लिटरेचर लिखा है, या उसकी जैसे अभी उसने जो व्हाट्सअप भेजा था मुझे, तो व्हाट्सएप पे दो तीन लाइन मुझे बहुत कैच हो गई थी। वो कैच होने की वजह से ही मैं ये रेमेडी पे जल्दी पहुंच गया था। तो उसने जब वो व्हाट्सएप पे लिखा था ना कि मैं पति गया या ये गए, तो उसके बाद में, और उसने एक लाइन लिखी थी वहां पे, तब तक तो तेव्हापर्यंत तर पुलाव खालून बरचसं पाणी निघून गेलं होतं सर। तर हे शब्द आहेत ना, ह्या इंटेन्स पेन मध्ये सुद्धा हे शब्द वापरणं किंवा हे, सो दिस इज अ पीक्यूआरएस। तो ये आर्ट एबिलिटी है। आपके केसेस में भी अगर आपको चाइना आती है, तो कहीं पे भी आप अगर ये पूछ सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये है तो ही आप चाइना दो, नॉट नेसेसरी, बट इट्स ऑल्सो गिव अ सिटी, आप कंफर्म होते हो वहां पे। तो ये सब चीज़ों में मैंने ये देखा है आर्ट एबिलिटी। तो ये अलग अलग फैसेट भी है, मैंने आपको अभी चाइना के बारे में बताया। सो थैंक यू वेरी मच, होपफुल, आई होप यू लाइक दिस सेशन ऑफ चाइना। और जैसे सर का कहना है कि होम्योपैथी सरल है, वो इजी है, और वो इजी ही बतानी चाहिए, और वो इजीली ही अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि
चाइना का ये जो फैसेट है, ये जो जर्नी है चाइना की, तो आपको अच्छी लगी होगी। या अभी से ही आप यानी आपको पास जो भी पेशेंट आते हैं और आपको लगता है कि कहीं पे भी मुझे ये लग जाता है या लग रहा है कि ये चाइना है, तो आप दो। और मुझे 100% यकीन है कि आपको यानी यू गेट अ रिजल्ट बाय दिस। And thankful, I am very much thankful to entire HHF family. uh, then I am also thankful to my teammate जलगांव HHF। जलगांव HHF बहुत सपोर्टिव लोग हैं। सिद्धू है, डॉक्टर विशाल पाटिल है, डॉक्टर अमर अमर पाटिल हैं, और बहुत सारे लोग हैं जलगांव HHF में। वो काफ़ी मदद करते हैं और उन्होंने ये मदद की है। और मेरी फैमिली, ये पीपीटी बनाने में मेरी वाइफ है, और उसने भी काफ़ी मदद की है। सो थैंक्स टू हर। और आई होप यू लाइक दिस सेशन। लव यू राव सर, एंड थैंक यू ऑल।